Hello student. Today we will discuss about real number. In real number, first of all we will discuss number system, lemma, algorithm, equality division lemma, equality division algorithm. Now we start our number system. Number system. Number system. In number system, first of all we will read about natural number. Natural number are all positive number, means from 1 to infinite, like 1, 2, 3, 4, so on to infinite. Second point is whole number. In whole number, we will add 0. So, whole number are 0, 1, 2, 3, 4, so on to infinite. After that, integer. In integer, we will add positive number, negative number with 0, like 0, 1, 2, so on to infinite, and this side minus 1, minus 2, so on to minus infinite. Now next is prime number. Prime number. Prime number are those number whose two factor, one itself and one factor is 1, like 2, 3, 5, 7, so on to infinite. In prime number, you can check it. Two factor are 2 into 1 and 1 into 2. Now composite number. Composite number. Composite number are those number whose factor are more than 2, like 4, 6, 8, so on to infinite. 4 factor are 2 into 2, 4 into 1, 1 into 4. You can show here 4 factor are more than 2. These are called our composite number. Now even number. Even number are those number which are multiplied by 2 or divisible by 2. You can say, like example, 2, 4, 6, 8, so on to infinite. Odd number. Odd number are those number which are not multiple or divisible by 2, like 3, 5, 7, 1, so on to infinite. Now we will discuss about fraction. Fraction in the form of p by q, where q not equal to 0. Fraction हमेशा किस फॉर्म में होता है? p by q की फॉर्म में होता है, और जहां पे q क्या होता है हमारा? not equal to 0. Fraction also two type. One is like fraction, and other is unlike fraction. In like fraction, denominator are same, and unlike fraction, denominator are not same. One more thing here, when we will use fraction, then we got it resulting terminating or non-terminating. Terminating like 1 by 2 is equal to 0.5, and 1 by 4 is equal to 0.25, and other is non-terminating like when we will divide by 1 by 3. 1 by 3 is equal to 0.333, so on. We can also write this or 0.3 bar. Now non-repeating. देखो non-terminating जो term होती है दो types की होती है. One is repeating और other is non-repeating type. Repeating type is like this type. 1 by 3 is equal to 0.33, so on. Non-repeating type like 0.1, 01, 001, 0001, so on to infinite. इसका हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग टाइप है, उसमें डिजिट क्या होती है? डिफरेंट टाइप की होती है.
अब बात करते हैं जो टर्म हमारी क्या हो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको हम, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एंड नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग also called rational number, but non-terminating or non-repeating type, non-terminating or non-repeating type is called our irrational number. ये जो टाइप है ये हमारी क्या बनेगी, irrational number, irrational number. And sum of means combination of rational number or irrational number is called real number. Sum of combination of rational and irrational number is called real number. Then we got it real number. तो रियल नंबर में हमें किसका यूज करना है, इन सभी आइडेंटिटीज का यूज करना है, अलजेब्रा का हमें यूज करना है। रियल नंबर में हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं फंडामेंटल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस चैप्टर में हम डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसके ऊपर बेस हम इक्वलिट डिवीजन लेमा और इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लेमा और एल्गोरिथम होता क्या है। लेमा एंड एल्गोरिथम, लेमा एंड एल्गोरिथम। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है, एक वे है, एक रिजल्ट है, या आप कह सकते हैं ये क्या है, एक एग्जाम है, जिसका यूज करके हम अदर रिजल्ट को सोल्व कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। सो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। नाउ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को, किसी सम को, किसी थ्योरम को सोल्व करने के लिए जिन स्टेप्स का हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इक्वलिट डिवीजन लेमा और इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वलिट डिवीजन लेमा, इक्वलिट डिवीजन लेमा जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इक्वलिट डिवीजन लेमा। इक्वलिट क्या था, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, साइंटिस्ट। इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या, हमने इसको डिवाइड करना, मतलब डिविजिबिलिटी रूल का यहाँ यूज करना है। और लेमा क्या हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेमा जो हो क्या हमारे पास एक स्टेटमेंट, जिसका यूज करके हमने क्या करना होता है, अदर प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। अब हम बात करते हैं इक्वलिट के बारे में, लेकिन इक्वलिट से पहले हमें पता होना चाहिए एल्गोरिथम और क्या है। एल्गोरिथम क्या है, द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी। इसको अल-ख्वारिज़मी ने दिया था, एल्गोरिथम के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। इनफैक्ट इवन द वर्ड अलजेब्रा, अलजेब्रा आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम ए बुक ही रोट कॉल्ड हिसाब अल-जबर। जिस बुक को उन्होंने लिखा था, हिसाब अल-जबर नाम की बुक से जो है अलजेब्रा वर्ड को लिया गया था। और उनकी अचीवमेंट क्या थी, उन्होंने ही इसको अचीव किया था कि हम एक डिफरेंट मेथड से, एक डिफरेंट वे से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें, उन्होंने ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बताया था। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ही इज द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा। और इन 12th सेंचुरी लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ हिज टेक्स्ट बुक इज अर्थमेटिक। Euclid was the first Greek mathematician who initiated a new way of thinking, that study of geometry. He is famous for his elementary of geometry also. Now we will discuss about Euclid division lemma. In Euclid division lemma, we will use the statement, different type statement we will use for division method. Now we will start our topic, Euclid division lemma. Euclid division lemma. Let a and b be any two positive integers, then there exists unique integer q and r. हमें यहाँ क्या करना, दो इंटीजर का यूज करना, a और b का। किसका यूज करना है, a और b, और उनके जो क्या आएंगे, यूनिक इंटीजर्स क्या आएंगे, q और r। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है इक्वलिट डिवीजन लेमा की बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड को एक अलग वे में लिखेंगे। और किस फॉर्म में लिखेंगे हम उसको, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो डिवीजन मेथड होता क्या था हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक नंबर है 15, और हम 15 को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। आपको पता है 2 7 से कितना होता है, 14।
2 7 जा 14 और रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 1। तो ये जो हमारे पास क्या है डिवीजर, डिवीजर, और ये क्या हमारा डिविडेंड, ये क्या हमारा कोसेंट, कोसेंट, और ये क्या हमारा रिमाइंडर। अब हम क्या लिखते थे प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट, इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब मान लिया जाए डिवीजर, डिविडेंड को मैं क्या ले लेता हूं यहां बी एज्यूम कर लेते हैं, और डिवीजर को क्या ले लिया हमने ए से डिनोट किया। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्पेसिफिक वैल्यू से ही डिवाइड होगा ना, 2 7 जा 14, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ 8 रखूं और उससे डिवाइड हो जाए। तो कोसेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, और रिमाइंडर को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा डिविडेंड, डिविडेंड क्या हमारे पास बी, और डिवीजर क्या हमारे पास ए इंटू कोसेंट, कोसेंट कितना हमारे पास क्यू प्लस रिमाइंडर कितना आर। तो बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। यहाँ क्या कहा इन्होंने ए एंड बी क्या है नहीं पॉजिटिव इंटीजर, तो बी और ए भी हो सकते हैं। और इन अदर वे मान लीजिए मैं इसको क्या ले लूं डिवीजर को ए ले लेता हूं, मान लिया जाए डिवीजर को हम क्या ले ले बी और डिविडेंड को क्या ले हम ए, देन डिविडेंड ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखो अगर हम इनकी नोटेशन अलग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं। और वैल्यू ऑफ आर जैसा कि आपको पता हमेशा क्या होती है डिवीजर से लेस होती है और जीरो से क्या होती है ग्रेटर। इसका मतलब क्या होगा जो रिमाइंडर है वो क्या होगा हमारा हमेशा जीरो से ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन टू बी। ठीक है, तो हमारा डिवीजन लेम्मा हमने क्या करना है इन स्टेप्स का यूज करके और इससे रिलेटेड सम को सॉल्व करना है। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इसके अंदर हमने करना क्या है। नाउ सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। अब हमें इसको किस फॉर्म में दिखाना है कि जो इंटीजर्स वो क्या होंगे इवन फॉर्म में होंगे तो 2q की फॉर्म में होंगे और ऑड की फॉर्म में होंगे तो क्या होंगे 2q plus 1। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लेट a इज इक्वल टू बी क्यू और b की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ 2। लेट a इज इक्वल टू b और b जो हमारा किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा, क्या हो जाएगा 2 क्यू प्लस आर और r की वैल्यू क्या होगी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन टू b। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो इसका मतलब r की वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन टू 2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। देन a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, 2q प्लस 0 इट मीन्स 2q and a is equal to other term 2q plus if r is equal to 1 then a is equal to 2q plus 1। अब देखो स्टूडेंट हमें पता है इवन जो टर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल ऑफ 2 होती है और ऑड टर्म क्या होती है अगर हम इवन में क्या कर दे 1 को ऐड कर दे तो क्या होती है हमारे पास ऑड टर्म होती है। इंटीजर जो हमें पता है क्या होते हैं या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। सो वी know integers are even and odd and here a is equal to 2q, so 2q is even, it implies we can see 2q plus 1 is odd integer, got it। now Euclid division algorithm,
इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्विलिट डिवीजन लेम्मा का यूज करते हैं, मतलब हम एक स्टेटमेंट का यूज करते हैं और उसको करते वक्त जो स्टेप आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम को हम इक्विलिट डिवीजन लेम्मा का यूज करते हुए इस एग्जांपल के अंदर हम समझेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। बड़े ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट क्या हमारे पास, यूज इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम। हमने किसका यूज करना, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम का, मतलब स्टेप्स का यूज करना, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। और क्या निकालना हमने यहाँ, एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, 210 और 55 का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। प्रीवियस क्लास में हम क्या करते थे, 210 के क्या करते थे, हम प्राइम फैक्टर बनाते थे, 55 के भी हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर बनाते थे। 210 के प्राइम फैक्टर आप करोगे कितना आएगा, 210, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 55, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11। तो 210 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, और 55 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 5 इंटू 11। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 5। तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, 5 होगा। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 5। लेकिन यहां किसकी बात कर रहे हैं हम, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ किस मेथड का यूज करना है, डिवीजन। आप कहोगे सर इस मेथड से भी तो हो रहा है, तो डिवीजन मेथड की क्या जरूरत है। देखो स्टूडेंट, ये टर्म क्या हमारे पास स्मॉल टर्म है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई टर्म है 6 2 4 8 3 6, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगी, ज्यादा लार्ज क्वांटिटी आएगी। तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम का यहाँ यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने किसका यूज करना है, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो डिवीजन मेथड हम यहाँ अप्लाई करते हैं। डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 210, सबसे पहले हमने चेक करना है इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 210 ग्रेटर देन 55, और हम क्या करेंगे यार, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो डिवीजन मेथड का यूज करने के लिए 210 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 55 से डिवाइड करेंगे। 55 3 जा 165, यहां से हमारे पास कितना बचेगा, 10 माइनस 5 5, और 10 माइनस 6 4, कितना बचा 45। अब 45 क्या है, तो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। हम इस प्रोसेस को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। अब 45 से डिवाइड करेंगे 55 को। अब देखो 45 रिमाइंडर है, और यहां पे हमने किसका यूज किया, इस डिविजर का यूज किया है। इस डिविजर को हमने क्या करना, जो रिमाइंडर आएगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 45 1 जा 45, रिमाइंडर कितना बचा 10। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना है 10, और डिविजर कितना है 45। तो 10 से अब हम किसको डिवाइड करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे। 45 10 4 जा 40, नाउ रिमाइंडर इज 5, और रिमाइंडर इज 5। अब 5 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 10 को। 5 2 जा 10 0। तो एचसीएफ कितना आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमने डिवीजन लेम्मा की फॉर्म में यूज करना है। डिवीजन लेम्मा क्या कहता था हमारे पास, बाय यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा, A is equal to BQ plus R, A is equal to BQ plus R। अब A is equal to BQ plus R, अब अकॉर्डिंग टू दिस A क्या हमारे पास 210, A B Q और R। So you write here 210 is equal to B into Q, मतलब 55 into 3 प्लस रिमाइंडर 45, और रिमाइंडर जो है वो क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0, 45 नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन वी विल अप्लाई हियर इक्विलिट डिवीजन लेम्मा। देन 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10, 45 इंटू 1 प्लस 10। सिमिलरली 10 ऑल्सो not equal to 0, again we will apply here। now dividend is 45, means 45 is equal to 10 into 4 plus 5, 45 is equal to
10 इंटू 4 प्लस 5। अभी भी रिमाइंडर क्या हमारे पास 5 है, नॉट इक्वल टू 0, 5 नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 5 से किसको डिवाइड करना है, पहले वाले के डिवीजर को। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। नाउ रिमाइंडर इज 0। So our HCF is equal to 5। तो हमने स्टूडेंट क्या करना है, इस तरीके से इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। देखो डिवीजन मेथड था, हमने मेथड पहले पढ़ा था, इसको क्या किया हमने एक न्यू वे में लिखा। किसका यूज करके लिखा हमने, यहाँ पे डिवीजन लेम्मा का यूज करके हमने इसको लिखा। तो ये जो न्यू वे आया, न्यू स्टेटमेंट आई, यही क्या होगा हमारा लेम्मा। और इसके जो हमने स्टेप अप्लाई किए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस बोलते हैं।